ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سر، میرا کام ختم ہو گیا، کیا میں گھر کے لیے نکل سکتی ہوں؟ نینا نے سر رمیز کے کمرے میں اجازت لے کر داخل ہوتے کہا۔ رمیز نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اس حسینہ کی طرف دیکھا تھا جس کے نقاب میں صرف اور صرف آنکھیں ہی نظر آتی تھیں، مگر اس کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ وہ بعض اوقات تو نظریں ہٹا ہی نہیں سکتا تھا۔ نہیں مس نینا، آج آپ نے میرے ساتھ ایک پارٹی پر چلنا ہے۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ بم تھا جو نینا کے سر پر آ گرا تھا۔ مگر سر، میرا کام تو… میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا مس نینا کہ جو کچھ آپ کو کہوں بس خاموشی سے مان لیا کریں، اس طرح سے بحث نہ کیا کریں۔ مجھے بحث کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ مگر سر، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میرا کام سیکٹری کا ہے اور میرا کام صرف آفس تک محدود رہے گا۔ یہ سن کر رمیز کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس نادان لڑکی کی نادانیوں پر مسکرائے یا اس کا مذاق اڑائے۔ مس نینا، سیکٹری کا کام ہر اس جگہ پر جانا ہوتا ہے جہاں پر جانے کے لیے باس کہتا ہے، اور میں کون سا آپ کو اپنے فلیٹ پر چلنے کو کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک بزنس پارٹی ہے جہاں پر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہوگا اور امپورٹنٹ پوائنٹ بھی نوٹ کرنے ہوں گے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات بہت سے بڑے بڑے بزنس مین کے ساتھ بھی ہوگی اور آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ یہ ہماری کمپنی کا ہی پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو ٹھیک، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ رہا دروازہ، آپ جب چاہیں یہ نوکری چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ مجھے اور لڑکیوں کی کمی نہیں، میں کسی اور کو سیکٹری رکھ لوں گا۔ ویسے بھی آج کل لوگ بہت مجبور ہیں۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اگر لوگ مجبور ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا شروع کر دے، مگر وہ خاموش ہو گئی کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ سب کچھ کہہ کر وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دے گی۔ اتنی مشکل سے تو اسے اتنی اچھی نوکری ملی تھی، تنخواہ بھی بہت زیادہ تھی اور بونس الگ سے تھا۔ وہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور جہاں تک اس پارٹی کا سوال تھا تو اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ یہ پارٹی کب تک شروع ہوگی؟ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ پارٹی تو بس 1 گھنٹے میں شروع ہونے والی ہے، مجھے یہ ذرا سا کام نپٹانا ہے، آپ تک باہر انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنی فائل پر جھک گیا۔ چپکے وہ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھایا اور اپنی ماں کو کال کرنے لگی۔ امی، آج رات میں لیٹ ہو جاؤں گی، دراصل ایک بزنس پارٹی ہے، مجھے وہاں پر جانا ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارے باپ کو پتا چلا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب آفس کی طرف سے جانا تو پڑے گا نا، اور ویسے بھی سب لوگ جا رہے ہیں، آپ ابا جان کو سنبھال لیجئے گا۔ اس کے بھائی کو کینسر تھا جس کا علاج کروانے کے لیے وہ یہ نوکری کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر بھائی کا علاج نہ ہوا تو وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کے غصے سے بھی واقف تھی جو پہلے ہی اس کے باہر جا کر نوکری کرنے کے خلاف تھا، مگر خود بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ جو بھی پیسہ گھر میں آتا تھا وہ جوئے پر لگا دیتا تھا۔ اس کی امی محلے کے لوگوں کے کپڑے سیتی تھی جس سے گھر کا نظام چلتا تھا۔ اب بھی اس نے کمپنی کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لی تھی جس کی وجہ سے مجبوراً اسے ہر کام کرنا تھا۔ کیا تم اسی لباس میں میرے ساتھ چلو گی؟ رمیز نے ایک نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی اور برا سا منہ بناتے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ کیا یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں؟ اس نے بے ساختہ اپنے 2500 کے جوڑے کی طرف دیکھا جو اس کے مطابق بہت مہنگا جوڑا تھا۔ نہیں، یہ اس پارٹی پر جانے کے لیے ٹھیک نہیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میرے پاس اس کے علاوہ… میں جانتا ہوں آپ بہت مجبور لڑکی ہیں اور آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ فضول کی خرافات میں پیسہ اڑائیں۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی عزت افزائی کر چکا تھا۔ شرمندگی کے مارے اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں۔ نہیں جانتی تھی
کہ کب تक उसे ये जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप मेरे साथ चलें, पहले हम शॉपिंग मॉल जाएंगे, वहां से आपके लिए अच्छा सा ड्रेस खरीदूंगा और फिर उसके बाद हम लोग पार्टी पर जाएंगे। एक नया हुक्म सुनाता वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि वो वहीं खड़ी रह गई। क्या आपको मुझे इनविटेशन कार्ड भेजना होगा? हाँ मिस नैना। उसका लहजा काटदार था। तेजी से वो भी उसके पीछे बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। वो इस कदर बौखलाई हुई थी कि वो एक और बेवकूफ़ी सरअंजाम दे चुकी थी। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर जब वो वहां पर जाकर बैठी तो वो उसे शीशे में ही घूरने लगा। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने कौन सी गलती कर दी। वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आने लगी थी। मिस नैना, मैं आपको बातें नहीं सुनाना चाहता, लेकिन आपकी कम अक्ली की वजह से मैं मजबूर हो जाता हूं कि आपको डांटूं, वरना मुझे किसी को डांटने का कोई शौक नहीं है। मैं आपका ड्राइवर नहीं हूं जो गाड़ी ड्राइव करके ले जाऊंगा। आप मेरे साथ मेरी पार्टनर बनकर पार्टी पर जा रही हैं। मेरे साथ आगे आकर बैठें। आखिरी बात उसने इस कदर गुस्से में की थी कि वो अपनी जगह पर उछल ही पड़ी थी। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मैं जहनी तौर पर हाजिर नहीं हूं, उसने माजरत की थी। अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो आपको जहनी तौर पर तैयार होना सीखना होगा, क्योंकि मेरी कंपनी में किसी भी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि पार्टी पर जाकर आप किसी किस्म का कोई हंगामा खड़ा नहीं करेंगी। मैं वैसे आज तक कभी भी इस तरह की पार्टियों में नहीं गई। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही थी। एक तो उसकी परफ्यूम की खुशबू पूरी गाड़ी में फैली हुई थी और नैना को बेचैन कर रही थी। दूसरी तरफ कंफ्यूजन की वजह से उसकी हथेलियां भी पसीना पसीना हो गई थी। टिश्यू पड़ा हुआ है, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं, रमीज ने सामने की तरफ देखते कहा तो वो हैरान रह गई। इस शख्स को हर चीज के बारे में पता चल जाता था। वो उसकी तरफ नहीं देखता था, मगर उसके बावजूद भी उसे पता होता था कि नैना क्या कर रही है, उसके ऊपर क्या बीत रही है। जब वो शॉपिंग मॉल पहुंचे तो उसकी आंखें एक लम्हे के लिए खुल गईं। आज से पहले वो कभी भी इतने बड़े मॉल में नहीं आई थी, क्योंकि वो अपनी औकात से वाकिफ थी। हमेशा ही वो छोटे बाजार में जाकर शॉपिंग करती थी, और ये शॉपिंग भी ईद के ईद ही की जाती थी। दुकानदारों से 50-50 रुपए के लिए लड़ाई झगड़े करती थी और जितना सस्ता हो सके कपड़ा खरीदती थी। अब बस पसंद कर लीजिए और मुझे बता दीजिएगा, मैं वो पैक करवा दूंगा। दोनों पहले एक दुकान के अंदर दाखिल हुए जो बहुत बड़ी थी। वहां पर हर तरह के कपड़े मौजूद थे। सेल्समैन अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए उनकी तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर एंड मिसेस, कैसे हैं आप? हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? पार्टी के लिए एक ड्रेस चाहिए, उसने संजीदगी से सेल्समैन की तरफ देखते कहा। आपको किस तरह का ड्रेस चाहिए? हमारे पास हर तरह के कपड़े मौजूद हैं। ये कहकर उसने उसकी तवज्जो दाएं जानिब मबजूल करवाई, जहां पर सारे ही स्लीवलेस कपड़े मौजूद थे। ये देखकर वो शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। मैं तुम्हें वो कपड़े पहनने पर मजबूर नहीं करूंगा, बेफिक्र हो जाओ। वो उसकी हैरत को भांप चुका था, इसीलिए अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला। बेसाख्ता इससे शुक्र की सांस ली थी। कुछ ऐसा दे जो मोडेस्टी पर पूरा उतरता हो। हमारे पास इवेंट के हिसाब से मुख्तलिफ अबायास भी मौजूद हैं। उम्मीद है आपको वो पसंद आएंगे। ये कहकर वो दोनों एक और जानिब बढ़ गए, जहां पर बहुत प्यारे प्यारे सऊदी स्टाइल्स में अबाया मौजूद थे, जिन्हें देखकर उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। उसे इस तरह के लिबास बहुत पसंद थे, मगर पैसे ना होने की वजह से वो कभी अपने लिए ऐसे कपड़े खरीद नहीं पाई थी। क्या तुम्हें ये ठीक लग रहे हैं? उसने अपने पहलू में खड़ी उस छोटी सी लड़की की आंखों में देखते कहा, जिसकी आंखों में अब खुशियों का एक जहान आबाद था। वो जोर शोर से हाँ में सर हिलाने लगी। न जाने उसके जहन में क्या आया। उसने प्राइस टैग देखा। सामने लगी हुई प्राइस को देखकर उसकी खुशी अब शर्मिंदगी में तब्दील हो गई, क्योंकि वहां पर एक अबाया की कीमत 50,000 थी। इतने में तो उनके घर का 3 महीनों का राशन भी आ जाता। उसने बेसाख्ता सोचा, प्राइस की फिक्र मत करो तुम, सिर्फ और सिर्फ कलर पसंद करो।
جو بھی کلر تمہیں اچھا لگتا ہے وہ اٹھاتی جاؤ، میں پیک کروا دوں گا۔ نہیں، مجھے صرف ایک ہی عبایا خریدنا ہے، اس نے جلدی سے احتجاج کیا تھا۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہ پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی تو وہ خود اس کے لیے کپڑے پسند کرنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ عبایا لگا کر دیکھتا، جو اسے سوٹیبل لگتا وہ اس کے لیے اٹھا لیتا۔ وہ اس کے لیے لاکھوں کی شاپنگ کر رہا تھا، جبکہ وہ حد سے زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو وہ پھر سے اسے تسلی دیتے بولا، فکر مت کرو، تمہاری تنخواہ کے پیسوں سے نہیں کاٹوں گا، میں اتنا ظالم انسان بھی نہیں ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر بوکھلا گئی۔ نہ جانے کیسے اس انسان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ اس نادان لڑکی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے پارلر لے کر گیا۔ مگر میں نے تو اپنا نقاب نہیں اتارنا، وہ بے چینی سے بولی۔ میں جانتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔ وہ اس سے بحث نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے بیٹھی رہ گئی، کیونکہ اسے اپنا رول پتا تھا کہ اس نے صرف اور صرف چپ رہنا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پارلر پہنچے جہاں پر وہ تیار ہوئی تھی۔ بہت ہی خوبصورتی سے اس کا حجاب سیٹ کیا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا، پردے میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رمیز نے اسے دیکھ کر اس کو داد دی، پرفیکٹ۔ وہ اس کے لیے بہت سے قیمتی جوڑے بھی خرید چکا تھا اور اسے نصیحت بھی کر چکا تھا کہ آج کے بعد کمپنی میں یہی کپڑے پہن کر آنا۔ اس نے خاموشی سے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پارٹی میں پہنچے تھے۔ لڑکیاں رمیز کو دیکھ کر بے چین ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ لڑکیاں اس کے پہلو میں چلتی ہوئی اس نقاب پوش لڑکی کو دیکھ کر جل بھن رہی تھی۔ ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ وہ رمیز کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو، اس سے بات چیت کرے، مگر وہ کسی کو یہ موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے یہیں پر رکو، تب تک میں ایک آدمی سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ رمیز نے اسے ایک ٹیبل کے ساتھ کھڑے رہنے کی ہدایت کی اور خود دائیں جانب کھڑے ایک بزنس مین کی طرف بڑھ گیا، جسے اس نے اگلی ڈیل کرنی تھی۔ وہاں پر اسے کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک اجنبی شخص وہاں پر چلا آیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکندر خان تھا، جو کافی عرصے سے اس ہرنی جیسی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کا حسن 7 پردوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ سب مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس کی وجہ اس کی خوبصورت آنکھیں تھی۔ کیسی ہو حسینہ، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کے پہلو میں کھڑا ہو کر بدتمیزی سے سوال کرنے لگا، جبکہ اس کا یہ انداز اور لہجہ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ایکسکیوز می، یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے نکل کر گزرنے ہی لگی تھی کہ سکندر نے اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ ارے کہاں پر جا رہی ہو بلبل؟ میں تم سے تمہارا نام پوچھ رہا ہوں اور تم مجھ سے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہو۔ آخر ایسا کیسے چلے گا؟ اس کا لہجہ بہت زیادہ برا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نینا نے اپنے لہجے کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، مگر ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اس کی آواز بھی کانپنے لگی تھی۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ابھی تو تمہیں دیکھنا ہے، تمہارا دیدار کرنا ہے، پھر تمہارے دیدار کو خراج تحسین پیش کرنی ہے۔ چلو نا میرے ساتھ پیچھے، میں نے ایک کمرہ بک کروا لیا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ آج کی رات تمہارے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، نینا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ذلیل انسان، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی؟ وہ غصے سے چلائی تھی، جبکہ سکندر کو بالکل امید نہیں تھی کہ یہ ہرنی جیسی نظر آنے والی لڑکی اسے تھپڑ مار دے گی۔ وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نینا کا دوپٹہ کھینچا تو وہ بے نقاب ہو گئی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اب وہاں پر موجود ہر شخص کی نظر کے سامنے تھا۔ بلا شبہ وہ دنیا کی حسین لڑکی تھی۔ شور کی آواز سن کر رمیز جب وہاں پہنچا اور جب اس نے اپنی سیکرٹری کا یہ حال دیکھا تو اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ لڑکی تو قابل عزت تھی، اس کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسے نینا کو یہاں پر نہیں لانا چاہیے تھا۔
जल्दी से वो सिकंदर की तरफ बढ़ा, उसके हाथ से दुपट्टा खींचकर नैना के हवाले किया। गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूं। वो वहां से रोती बिलखती चली गई, जबकि वो सिकंदर पर हावी हो गया। उसने सिकंदर के चेहरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। थोड़ी ही देर में उस बेचारे का हाल बहुत बुरा हो गया था। इससे पहले कि वो जान से जाता, लोग आगे बढ़े और रमीज को पीछे हटाया। वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस लड़की को हाथ लगाने की? मैं तेरे हाथ तोड़ डालूंगा। सब लोग जानते थे कि सिकंदर ने रमीज की औरत पर नजर डालकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसका हिसाब तो उसे बाद में देना पड़ेगा। वहां से वो गुस्से की हालत में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जहां पर वो बैठी सिसकियां ले रही थी। दुपट्टा अभी तक उसके सर से उतरा हुआ था और उसका खूबसूरत चेहरा वाज़ेह था। उसने बेसाख्ता इसके चेहरे से नजरें चुराई थी। तुम्हें मैंने कहा था कि वहां पर खड़ी रहना, तुम्हें वहां से हटने के लिए किसने कहा? वो समझ रहा था कि शायद वो वहां से चली गई थी। मैं वहीं पर खड़ी थी, मगर वो बदतमीज इंसान वहां पर चला आया। उसने फौरन से एहतजाज किया। तो तुम मुझे आवाज दे देती, रमीज ने उसे डांटा। उस इंसान ने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। मैं उसके करीब से होकर गुजरने लगी थी कि उसने मेरी बाजू पकड़ ली। ये कहकर वो फिर से रोने लगी और उसे शिकायत करते हुए कहने लगी, इससे पहले कभी भी किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? फिक्र मत करो, मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। तुम प्लीज अब रोना बंद कर दो। ये कहकर वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। क्या अब इसी हालत में बैठे रहने का इरादा है या फिर दोबारा से नकाब करना है? रमीज ने शरारती अंदाज में उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो वो फौरन से होश की दुनिया में आई। वो तो ये बात भूल चुकी थी कि इस वक्त वो बेनकाब इस इंसान के सामने बैठी है। जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और फौरन से अपना चेहरा ढांप लिया, मगर उसकी खूबसूरत आंखें अभी भी रमीज के दिल पर तीर चला रही थी। क्या तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूं? उसने सवाल किया तो वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। नहीं सर, मेरे घर ड्रॉप ना कीजिएगा। बहुत वक्त हो गया है। अगर किसी ने रात के इस पहर घर में दाखिल होते देख लिया तो मोहल्ले वाले मेरे खिलाफ बातें करना शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे किरदार पर वार करे। रमीज को यह बात बहुत बुरी लगी थी। फिर तुम किस तरह लोगों के दरमियान में रह रही हो? मैं कल ही तुम्हें कंपनी की तरफ से एक घर दे दूंगा। हैरत से उस लड़की की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसने कंपनी के जिन लोगों से बात की थी उन्होंने इसे यही बताया था कि जो शख्स इस कंपनी में तकरीबन 12 साल काम करता है तो कंपनी 12 सालों के बाद उसे घर देती है। उससे पहले तक किसी को भी कंपनी रिहाइश नहीं देती, और उसे तो काम करते सिर्फ और सिर्फ अभी 1 हफ्ता गुजरा था। वो मशकूक अंदाज में रमीज के चेहरे की तरफ देखने लगी। फिक्र मत करो, मेरे इरादे बहुत नेक हैं, तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, वो फौरन से हकला गई। मुझे बताओ तुम्हें कहां पर ड्रॉप करूं? रमीज अब संजीदगी से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। आप मुझे किसी भी हॉस्टल में छोड़ दें, मैं आज की रात हॉस्टल में गुजार लूंगी और फिर सुबह अपने घर चली जाऊंगी। उसने बहुत नॉर्मल अंदाज में कहा था। तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या रात के इस पहर में तुम्हें हॉस्टल में छोड़ूंगा? इसमें कोई बुराई नहीं है और मेरे पास भी इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं, उसने निगाहें झुकाते हुए कहा। रमीज को अंदाजा नहीं था कि इस लड़की की इतनी ज्यादा मजबूरियां होंगी। इससे तो अच्छा था कि वो उसे कभी अपने साथ उस पार्टी में ना लाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तुम चलो मेरे घर, आज की रात वहीं पर गुजार लो, सुबह फिर मेरे साथ ऑफिस चली जाना। वो नॉर्मल से अंदाज में बोला था, जबकि इसे लगा कि इसके कदमों के नीचे से जमीन ही निकल गई है। वो बेयकीनी से इसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, तुम्हें रात के इस पहर किसी के हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि जमाना बहुत खराब है और जितनी मासूम और बेवकूफ तुम हो, कोई तुम्हें बेच खाए और तुम्हें पता भी ना चले। एक बार फिर से वो उसकी बेवकूफी का जिक्र कर चुका था। मगर मैं आपके साथ नहीं रह सकती।
अगर किसी को पता चल गया तो वो मेरी इज्जत पर बात करेंगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तब तक कोई तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता, उसने एक यकीन से कहा था। वो जिस दिन आप भी दूर होंगे उस दिन मैं क्या करूंगी? बेसाख्ता उसकी जबान फिसली मगर वो जल्दी से खामोश हो गई। रमीज उसे बताना चाहता था कि वो कभी उससे दूर नहीं होगा, मगर ये ठीक वक्त नहीं था। वो इस लड़की को मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। उसकी गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने आकर रुकी, जो किसी शहजादे का घर मालूम हो रहा था। चलो गाड़ी से उतरो। क्या तुम्हें गाड़ी से उतारने के लिए भी इनविटेशन लाना पड़ेगा या फिर तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछाना पड़ेगा? वो अब इसकी बातों का बुरा नहीं मना रही थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि रमीज हर किसी से इसी अंदाज में बात करता है। मजाल है जब वो कोई भी बात सीधे अंदाज में करता हो। वो खामोशी से गाड़ी से नीचे उतरी और छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे चलने लगी। वो दोनों जब हवेली के अंदर दाखिल हुए तो नौकरानी तेजी से रमीज की तरफ आई और उसके हाथ से कोट ले लिया। उसके साथ ही उसके पाँव में से जूते भी उतारे। वो सिर्फ मोज़ों में मौजूद था। पूरे लाउंज में कारपेट बिछा हुआ था, जबकि वो जूतों में ही अंदर जा रही थी। नौकरानी ने बेचारगी से अपने साहब की तरफ देखा, जिसे इस चीज से शदीद नफरत थी, मगर रमीज ने आंखों ही आंखों में उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। वो खुद भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। आपका घर तो बहुत खूबसूरत है, उसने सताइशी अंदाज में कहा। मैं जानता हूं, उसकी बात सुनकर वो फीके से अंदाज में बोला था। आपके तो बहुत मजे हैं, आपके पास तो अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। एक बार फिर से उसे उसकी आवाज सुनाई दी थी। लेकिन मेरे पास सुकून नहीं है। हैरान होने की बारी इसकी थी। अगर किसी इंसान के पास इतना पैसा हो, मैं मान ही नहीं सकती कि उसके पास सुकून ना हो। बेसुकून तो हम जैसे गरीब लोग होते हैं। मजाल है जो एक लम्हे के लिए भी चैन नसीब हो। कभी घर के राशन की टेंशन होती है तो कभी बिलों की टेंशन, कभी घर में बीमारी आ जाती है तो कभी बहन भाइयों की फीस देनी पड़ती है। बात करते करते एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम्हें भूख लगी हुई है? रमीज ने जल्दी से बात तब्दील की। मुझे बहुत शदीद भूख लगी है, वो अपने पेट पर हाथ रखते बेचारगी से बोली थी। उसका इरादा पार्टी पर जाकर दबकर खाने का था, मगर वहां पर होने वाले हंगामे की वजह से वो लोग खाली पेट ही वापस आ गए थे और अभी इसका भूख के मारे बुरा हाल था। फिरोजा बेगम, बीबी साहिबा के लिए नाश्ता लगा दे। अपने लिए बीबी साहिबा का लफ्ज सुनकर एक बार फिर से वो खुलकर मुस्कुरा दी। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है, वो संजीदगी से उसके चेहरे की तरफ देखते बोला था। देखो, मुझे गलत मत समझना और मत सोचना कि मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूं। मैं जानता हूं तुम हो जो मेरी मदद कर सकती हो और मैं ही हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं आपकी बात नहीं समझ रही, क्या आप मुझे खुलकर बता सकते हैं? वो बेचारगी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली। पहले चलकर खाना खाते हैं, खाने के बाद मैं तुम्हें इस बारे में बात करूंगा। वो दोनों किचन की तरफ बढ़ गए थे, जहां पर एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल पड़ा था। वो दोनों लोग एक कोने पर बैठे हुए थे। सामने हर तरह के लवाजमात मौजूद थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहां से शुरू करे, और फिर उसने पेट भर कर खाना खाया। इतने अरसे बाद उसने मजे मजे की चीजें खाई थी। वो बहुत ज्यादा पुरजोश थी और छोटे बच्चों की तरह खुश हो रही थी। मुझे पता है कि तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि जब तक एक मोटी रकम उनके हवाले नहीं की जाएगी तब तक वो तुम्हारे भाई का इलाज नहीं करेंगे। रमीज ने उसके चेहरे की तरफ देखते खुद ही बात की थी। भाई का जिक्र सुनकर एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। जी, ऐसा ही है, उसने धीमे लहजे में अपनी गर्दन झुकाते कहा। मैं तुम्हारे भाई का इलाज कराऊंगा, उसका सारा खर्चा उठाऊंगा। उसके साथ साथ मैं तुम्हें एक घर, एक गाड़ी और 5 करोड़ भी दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। इतनी बड़ी रकम और इतनी सारी चीजों का सुनकर उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसे तो लग रहा था किसी ड्रामे का सीन चल रहा है
जहां पर हीरोइन को इस तरह से ऑफर की जाती थी, लेकिन ऑफर करने वाला इंसान लड़के का बाप होता था और यहां पर खुद लड़का उसे इतनी सारी चीजें पेश कर रहा था। उसकी कीमत भी कम नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ी सी परेशान हो गई और उसे सवाल करते कहने लगी, बदले में मुझे क्या करना होगा? वो खुलकर मुस्कुरा दिया, ये तुमने बहुत ही अच्छा सवाल मुझसे पूछा। बदले में तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। वो फौरन से जमीन पर आई थी। उसके ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। वो जो समझने लगी थी कि वो इंसान इसकी ज़ात में दिलचस्पी लेने लगा है और इससे मोहब्बत करने लगा है, उसकी सारी खुशफहमियां ख़त्म हो गई थी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मतलब ये कि तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, लेकिन उस निकाह की कोई अहमियत नहीं होगी। यानी हम दोनों सिर्फ दुनिया की नज़र में मियाँ बीवी होंगे। हम दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी की वजह से कर रहा हूँ। दरअसल उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, किसी भी वक्त उनकी रूह इस फानी दुनिया से परवास कर सकती है। उनकी ख्वाहिश है कि मैं उनकी वफात से पहले शादी कर लूं, मगर मैं शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे औरत ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही मुझे औरत ज़ात पर भरोसा है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी दादी जान को दिखाने के लिए की जाएगी। तो क्या इस दौरान मुझे आपके घर ही रहना होगा? उसने एक और छोटा सा सवाल किया तो वो जोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगा। मगर इस दौरान मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी? वो तो कभी मुझे यूं बाहर रहने की इजाजत नहीं देंगे। वो एक बार फिर से बेचैन हुई थी। उसका भी इंतजाम मैंने ढूंढ लिया है। जहां तक तुम्हारे बाप का सवाल है तो मैं उन्हें पैसों से खरीद लूंगा और तुम्हारी माँ को मैं बता दूंगा कि ऑफिस की तरफ से एक ट्रिप दूसरे मुल्क जा रहा है और हम तकरीबन 5 महीनों तक वहीं रहेंगे। मैं एडवांस के तौर पर 1 करोड़ की रकम उनके हवाले कर दूंगा। मुझे यकीन है फिर वो कभी मुझसे सवाल नहीं करेंगे। उसने सारी बातें पहले से ही सोची हुई थी और तब नैना को अपने खानदान पर गुस्सा आ रहा था। उसे अपनी गरीबी पर गुस्सा आ रहा था कि काश उनके पास इतना पैसा होता कि कोई भी उन्हें खरीद ना सकता। वो इस ऑफर से इनकार करना चाहती थी, मगर जब उसके जहन में अपने भाई फारूक की रोती हुई आवाज गूंजी, बाजी मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। मुझे जिंदगी गुजारनी है, बहुत ज्यादा पढ़ना है और एक बड़ा आदमी बनना है। तो मुझे कभी मरने ना देना, मुझे बचा लेना। यह आवाज उसके सर में दर्द करने लगी थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली, एक गहरी सांस ली और रमीज को कहा, ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। मुझे यकीन था कि तुम इस बार किसी किस्म की बेवकूफ़ी नहीं करोगी। नौकरानी ने तुम्हारा कमरा सेट कर दिया है, अपने कमरे में जाकर आराम करो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। कल ही मेरी दादी जान पाकिस्तान वापस आ जाएंगी। मैं तुम्हारी मुलाकात उनसे कराऊंगा और फिर कल ही शाम जाकर तुम्हारे वालिदैन से भी बात कर लूंगा। ठीक है। उसने तेजी से हाँ में सर हिला दिया और उस आलीशान कमरे में चली गई जो नौकरानी ने उसके लिए सेट किया था। उसे लग रहा था वो किसी शहजादी के कमरे में आ गई है। इस कदर खूबसूरत और कीमती फर्नीचर उसने सिर्फ और सिर्फ टीवी ड्रामों में देखा था। आज वो काफी लेट हो गई थी, जिसकी वजह से वो ईशा की नमाज भी अदा नहीं कर सकी थी। पहले उसने ईशा की नमाज अदा की और फिर उसके बाद 2 नफल पढ़े और अपने रब से मदद तलब की। उसका दिल बार बार जख्मी हो रहा था, उसके दिल में दर्द भर रहा था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि रमीज के अल्फाज ने उसे क्यों तकलीफ दी है। शायद वो कुछ और सुनना चाहती थी, मगर वो क्यों भूल गई थी कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि कोई अमीर इंसान उससे मोहब्बत कर सके। उसको ये भी याद रखना चाहिए था कि उसकी जिंदगी में जो कोई भी आएगा सिर्फ और सिर्फ उसे इस्तेमाल करने आएगा। मुझे ही रमीज से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी। उसने सारी गलती अपने सर पर डाल दी। न जाने कब उसकी आंख लगी, उसे पता ही ना चला। सुबह उसकी आंख दस्तक की आवाज पर खुली थी। कोई दरवाजा जोर जोर से बजा रहा था। उसने बुरा सा मुंह बनाया, इससे पहले कि वो दोबारा सोने के लिए लेट जाती।
उसे रमेश की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, अभी इसी वक्त दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाऊंगा। वो जल्दी से अपनी जगह पर उछल पड़ी और जाकर दरवाजा खोला, जहां पर वो गुस्से की हालत में खड़ा इसे घूर रहा था। ये क्या तरीका है? मैंने तुम्हें कल बताया था कि कल सुबह 8 बजे तैयार हो जाना। माफ कर दें, रात को लेट सोई थी जिसकी वजह से आंख नहीं खुल सकी। चलो अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ और फिर मेरे साथ चलो। हम ऑफिस जा रहे हैं, वहां पर जाकर भी मैंने सब लोगों को अपनी और तुम्हारी शादी के बारे में बताना है। नहीं प्लीज, आप उन लोगों को नहीं बताइएगा, इस तरह से खबर मेरे घर वालों तक पहुंच जाएगी, उसने बेचैनी से कहा था। क्या इस ऑफिस में तुम्हारी कोई दोस्त है? रमेश ने उसकी आंखों में देखते सवाल किया। वो जानता था कि उसकी मामूली से लिबास की वजह से वहां की कोई भी लड़की उससे बात नहीं करती थी और कोई भी उसकी जात में दिलचस्पी नहीं लेती थी। नैना ने ना में गर्दन हिलाई तो वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगा। तो तुम्हें डर क्यों लगता है कि कोई तुम्हारी हकीकत तुम्हारे घर वालों को बता देगा? तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता और ना ही किसी को तुम्हारे बारे में जानने में कोई दिलचस्पी है। हाँ, जिस दिन उन्हें यह पता चलेगा कि हम दोनों का निकाह हो गया है, उस दिन वो जरूर तुम्हारी जात में दिलचस्पी लेंगे, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि रमेश की वजह से। उसके लहजे में एक गरूर था और एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इसे ये एहसास दिला रहा हो कि इसकी अहमियत सिर्फ और सिर्फ रमेश की वजह से है, रमेश के बगैर उसकी कोई अहमियत नहीं। जी मैं समझ गई, उसने अपनी निगाहें झुकाकर धीमे लहजे में कहा। जब ऑफिस वालों को पता चला कि वो दोनों शादी कर रहे हैं तो हर तरफ चेमगोइयां होने लगी थी। देखा, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, ये लड़की बहुत जल्द हमारे बॉस को लेकर उड़ जाएगी, मगर तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब देखो कैसे वो उसे एक ही हफ्ते में निकाह करने वाली है। कोमल, जो कि वहां की सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर लड़की थी, वो अपने दिल के फफोले फोड़ रही थी, क्योंकि उसका अपना इरादा रमेश को फंसाकर शादी करने का था, मगर उसकी बदकिस्मती कि वो इंसान इसके हाथों से निकल गया और अब वो नैना की बुराइयां कर रही थी, इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान कि रमेश उनके केबिन के दरवाजे पर ही खड़ा था। अचानक ही फौजिया की नज़र रमेश पर पड़ी तो वो जल्दी से सीधी होकर बैठी और उसने इसे भी खामोश होने का इशारा किया, मगर कोमल उसकी तरफ देखे बगैर बोले चली जा रही थी। लगता है आपको इस कंपनी में काम करने का अब मजीद कोई शौक नहीं है। रमेश की आवाज सुनकर वो अपनी जगह पर उछल पड़ी। पलट कर देखा तो वो दरवाजे में ही खड़ा खूनख्वार नजरों से इसे देख रहा था। नहीं सर, उसने एहतजाजन कहा। नहीं कोमल साहिबा, आपकी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया और कल से आपको ऑफिस में आने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब यहां पर आपकी कोई जगह नहीं। इसके अलावा बाकी लोग भी कान खोलकर सुन ले, जिसने भी मेरी बीवी के खिलाफ फजूल बातें करने की कोशिश की वो खामोशी से यह ऑफिस छोड़कर चला जाए। वो उसे मिनटों में ही फायर कर चुका था और उसके साथ ही बाकी सब लोगों को भी धमकी दे चुका था। सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। कोमल अब रो रही थी और इस कंपनी के की जाने वाली खिदमात को गिन रही थी, मगर अब उसका कोई फायदा नहीं था। उसे इस वक्त खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था जब वह बुराइयां कर रही थी। शाम के वक्त वो रमेश के साथ ही अपने घर के अंदर दाखिल हुई। सामने ही उसका जवारी बाप बैठा था। उसे गैर मर्द के साथ दाखिल होता देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। इससे पहले कि वो अपनी बेटी के पास जाता और सब लोगों के सामने मारता, रमेश ने उनका बाजू पकड़ लिया और इंसानियत से समझाते हुए कहने लगा, देखिए अंकल, आपको गलत फहमी हुई है। मैं इनका बॉस हूं और फिलहाल आपके पास एक बहुत अच्छी डील लेकर आया हूं। वो थोड़े से शर्मिंदा हो गए और गड़बड़ाते हुए बोले, क्या मतलब है इस बात का? और अगर तुम बॉस हो तो घर में क्यों आ रहे हो? ऑफिस तक महदूद रहो। उनका लहजा बदतमीजी से भरा हुआ था। रमेश को किसी का भी ये लहजा बर्दाश्त नहीं होता था, मगर वो सिर्फ और सिर्फ नैना की वजह से ये सब बर्दाश्त कर रहा था।
अंकल पहले आप मेरी बात तो सुने, मुझे उम्मीद है आपको ये डील बहुत पसंद आएगी, उसने अपने लबों पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। उसकी माँ उसे कमरे में लेकर चली गई थी और अब सब लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। दरअसल मैं 1 करोड़ एडवांस में आप लोगों के हवाले कर दूंगा। अभी उसने बात मुकम्मल नहीं की थी कि उन दोनों की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। आमना बेगम बेयकीनी से अपने शौहर की तरफ देखते कहने लगी, इससे तो हमारे बेटे फारूक का इलाज भी हो जाएगा और हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि उसके बाबा खुश हो रहे थे कि इस तरह से वो अपना कर्ज अदा कर देंगे और उनकी मजीद जुआ खेलकर पैसा डबल करने की ख्वाहिश भी खत्म हो जाएगी। या हमारी बेटी ने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है? जुनैद साहब ने अब की बात रमीज की आंखों में देखते हुए कहा तो वो खुलकर मुस्कुरा दिया। जी ऐसा तो नहीं है, मगर आप लोग अपनी बेटी को मेरे साथ अमेरिका जाने की इजाजत दे दें तो हो सकता है ये कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दे। वो मायनी खेज अंदाज में नैना की तरफ देखते बोला तो वो पहलू बदल कर रह गई। क्या मतलब है बेटा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। जुनैद साहब का लहजा अब नरम हो गया था। इतनी बात तो वो भी जानते थे कि उनकी बेटी नौकरी करती है और अब अमेरिका जाने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। वो इसी बारे में उससे सवाल कर रहे थे। दरअसल हम लोगों की एक बहुत जरूरी मीटिंग है जो कि अमेरिका में होगी और तकरीबन 5 महीनों तक इसे वहां रहना होगा। हर महीने इसको 5 लाख तनख्वाह भी मिला करेगी और इसके अलावा बोनस भी मिलेगा। वो दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि एकदम से किस्मत उन लोगों पर मेहरबान हो जाएगी और दौलत के दरवाजे उन पर खुल जाएंगे। आमना बेगम और जुनैद साहब ने कुछ भी सोचे समझे बगैर अपनी बेटी को वहां भेजने की इजाजत दे दी, क्योंकि अभी और इसी वक्त उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना था। नैना की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। उसके दिल में शिकवा जन्म ले चुका था। उसे अपने बाप से शिकायत थी, जो कुछ अरसा पहले तक उसे नौकरी की इजाजत सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं दे रहा था क्योंकि वो उसे पैसे लाकर नहीं देती थी। और अब जब वो एक मोटी रकम उनके हवाले कर रही थी तो उन्हें नौकरी से कोई मसला नहीं था और ना ही उन्हें इस बात से परेशानी थी कि वो अमेरिका जा रही है। वो वहां से जा चुका था, लेकिन जाने से पहले वो मतलबी अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए गया था, जैसे इसे बावर कराने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि पैसा हर किसी को खरीद सकता है, और अब वो उसके माँ बाप को भी खरीदने में कामयाब हो गया था। रात के वक्त वो अपने कमरे में बैठी थी जब उसकी माँ अंदर दाखिल हुई और उसे गुस्से से कहने लगी, अभी तक तुमने अपना सामान पैक नहीं किया, जल्दी से सारे कपड़े पैक करो, तुम्हें कल सुबह 5 बजे यहां से निकलना है। वो थोड़ी सी हैरान हुई और कंफ्यूज भी कि इनको इस बारे में कैसे पता। उसने बेचैनी से कहा, मुझे अभी थोड़ी देर पहले रमीज की कॉल आई थी, उसने मुझे बताया है, और तुम्हें पता है उसने तुम्हारे बाप के अकाउंट में 50 लाख भिजवा दिए हैं। बाकी के 50 लाख वो बाद में भिजवाएगा। मैं तो सोच रही हूं वो पैसे मैं अपने पास मंगवा लूं। कल से ही हम लोग तुम्हारे भाई का इलाज शुरू करवा देंगे और कुछ ही अरसे के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भाई का नाम सुनकर उसने अपनी मां का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, खुदा के लिए मेरे भाई को कुछ ना होने दीजिएगा। मैं अपने भाई की जिम्मेदारी आपको देकर जा रही हूं। आमना बेगम को उसकी ये बात पसंद नहीं आई थी, इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा दिखाते बोली, अगर वो तुम्हारा भाई है तो वो मेरा बेटा भी है। मैं कैसे उसे कुछ होने दे सकती हूं? तुम हम लोगों की तरफ से बेफिक्र हो जाओ और अपने काम की तरफ तवज्जो दो। बहुत सारे पैसे कमा कर वापस आना। वो सब लोग बहुत ज्यादा पुरजोश थे। उसका भाई फारूक भी बहुत खुश था और अपनी बहन को कह रहा था, जब आप वापस आएंगी तब तक मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे लिए बहुत सारे कपड़े लाइएगा, मुख्तलिफ ब्रांड की शर्ट्स भी लाइएगा, मैं वो पहनकर बाहर जाया करूंगा। उसने अपने भाई का सर अपने सीने से टिका दिया और उसके माथे पर बोसा देते कहने लगी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाना और रोज मुझे कॉल करना और अपनी खैरियत के बारे में बताना। जुनैद साहब को जिंदगी में पहली बार इस बात का एहसास हो रहा था
کہ وہ لڑکی ان کی اپنی ہی بیٹی ہے۔ وہ بھی اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے، میرے بچے، تم نے میری مشکلات ایک دم سے ختم کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ وہ قرض جو اس کو چکاتے مجھے پوری زندگی گزر گئی، میں ابھی تک وہ قرض چکا نہیں پایا ہوں۔ تم نے وہ منٹوں میں ہی چکا دیا۔ تم نے میرے کندھے کا بوجھ اتار دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ بات کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ امریکہ نہیں گئی تھی، لیکن سب کو یہی بتا کر آئی تھی کہ وہ امریکہ جا رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھی، جہاں پر پہلے سے ہی رمیز کے دوست آ گئے تھے۔ مولوی بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہونے والا تھا۔ اس کے دل کی حالت بہت عجیب تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا ہنسے۔ اس سب کو قسمت کی مہربانی کہیے یا قسمت کی ستم ظریفی۔ یہ سچ تھا کہ وہ رمیز کو پسند کرتی تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس انسان کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی تھی تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا، مگر اس نے کبھی بھی یہ خواہش نہیں کی تھی کہ رمیز کو اسے اس طرح سے استعمال کرتا۔ ان دونوں کے نکاح کو تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ دادی جان بھی پاکستان واپس آ گئی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت دادی جان کے پاس ہی گزارتی تھی۔ رات کے وقت صرف سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی تھی۔ اس دوران بھی وہ رمیز سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ دراصل آج اس نے رمیز کے ساتھ ایک میٹنگ پر جانا تھا۔ جب وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس پورے ہفتے میں پہلی بار اس نے اس کی تعریف کی تھی۔ شکریہ، نینا نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ رمیز نے پھر سے اسے سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور حیرت کا اظہار کرتے کہنے لگی، میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ آپ نے تو مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، مجھے تو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ تھی جس کو رمیز نے محسوس کیا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، تو پھر اس طرح کا رویہ کیوں دکھا رہی ہو؟ میں بالکل نارمل ہوں، آپ کو نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ رمیز نے اس کی بازو پکڑی اور اسے اپنی جانب کھینچتے کہا، تم پہلے کی طرح ہنسی مذاق نہیں کرتی، اور نہ ہی تم پہلے کی طرح مسکراتی ہو، نہ ہی تم پہلے کی طرح بے وقوفیاں کرتی ہو۔ تم بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہو، اور تم سمجھدار بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ میں چاہتا ہوں تم پہلے کی طرح ہنسو، کھیلو، پہلے کی طرح نادانیاں کرو۔ مجھے وہ بے وقوف سی نینا بہت اچھی لگتی تھی۔ نینا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اسی بے وقوف سی نینا نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ اب وہ نینا کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ اس بات میں بہت سے مفہوم چھپے تھے۔ وہ اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا، اسی لیے نظریں چراتے ہوئے کہنے لگا، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ نوکرانی کمرے کے اندر داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر فوراً سے شرمندہ ہو کر کہنے لگی، معاف کر دیجئے صاحب، دراصل دادی جان آپ دونوں کو نیچے بلا رہی ہیں۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے دروازہ بجا کر آیا کرو، اس طرح سے منہ اٹھا کر کسی کے کمرے میں نہیں چلے جاتے۔ تم چلو، ہم دونوں آ رہے ہیں۔ دادی جان کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے انہوں نے دونوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب وہ رات کو واپس آئے تو ایک اور بڑی قیامت ان پر گزری۔ دادی جان کا انتقال ہو چکا تھا۔ نینا بہت زیادہ روئی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں بہت دکھ ہو رہا تھا۔ شاید زیادہ دکھ اسے اس چیز کا تھا کہ یہ شادی دادی جان کی وجہ سے ہوئی تھی، اور جب دادی جان چلی گئی تو اس شادی کا بھی کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے کمرے میں کھڑی سامان پیک کر رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا، اسے سامان پیک کرتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ گھر واپس جانے کی تیاری کر رہی ہوں، مگر ہماری کانٹریکٹ میرج ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ 5 مہینوں کا کانٹریکٹ تھا۔ میں نے وہ اچھی طرح سے پڑھا تھا۔ وہاں پر یہ بھی لکھا تھا کہ اگر آپ کی دادی جان کا انتقال ہو جاتا ہے تو میرا آپ کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔
बाकी हर चीज पढ़ लेती हो, लेकिन कभी मेरी आंखें पढ़ने की कोशिश नहीं की तुमने। ना चाहते हुए भी वो शिकायत कर बैठा। एक लम्हे के लिए उसके हाथ रुके थे, मगर अगले ही लम्हे वो कपड़े फिर से अपने बैग में डालने लगी। तुम 5 महीनों से पहले यहां से कहीं नहीं जाओगी, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को हकीकत के बारे में बता दूंगा। उसने धमकी दी तो वो आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखते बोली, आप इस कदर जालिम कैसे हो सकते हैं? मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा, बल्कि जुल्म तो तुम मुझ पर कर रही हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। 5 महीनों तक मैं आपके साथ रहूंगी, उसके बाद तो मुझे आपसे अलग होकर ही रहना होगा। उसके बाद मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। नैना को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जानती थी कि रमीज उससे मोहब्बत करता है, मगर उसका इजहार नहीं कर रहा, और इसी वजह से वो उससे नाराज रहने लगी थी। वो अब उससे पहले की तरह बातचीत नहीं करती थी। अब तो वो उससे छुपने लगी थी। रात को जब वो सो जाता तो वो कमरे के अंदर दाखिल होती। एक दिन वो लेट कमरे के अंदर दाखिल हुई तो वो पहले से ही जाग रहा था। यहां पर मेरे पास आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नैना छोटे छोटे कदम उठाते उसके पास खड़ी हुई। रमीज ने उसका बाजू एक झटके से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा तो वो जोर से उसके सीने पर जा लगी। उसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। नैना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। चंद लम्हों के लिए तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। वो चेहरा उठाकर बेयकीनी से उस इंसान की तरफ देखने लगी। मैं काफी अरसे से अपने जज्बात छुपा रहा हूं। मैं किसी औरत पर यकीन नहीं करना चाहता था, मगर जब मैंने तुमसे दूरी इख्तियार करने के बारे में सोचा तो मुझे लगा मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगा। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर मेरी कोई जिंदगी नहीं है। तुम्हारे बगैर मेरी खुशियां नहीं हैं। मुझे तुमसे बेतहाशा मोहब्बत है, और ये मोहब्बत मुझे आज से नहीं, बल्कि वो पहले दिन से, जब मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आंखें देखी थी और खुद को उनमें डूबता हुआ पाया था। फिर जैसे जैसे मैं तुम्हें जानता गया, तुम्हारी मासूमियत मुझे घायल करती गई। तुमसे ज्यादा मासूम और मैंने अपनी सारी जिंदगी में कोई नहीं देखी। तुम बेशक चालाकी कर लो, मगर उन चालाकियों में भी मासूमियत झलकती है। मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं आपसे बहुत नाराज हूं। आपने मुझे मेरी ही नजरों में बहुत शर्मिंदा किया है। अगर आपको मुझसे पहले ही मोहब्बत थी तो आप इजहार कर देते। यूं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की क्या जरूरत थी? वो तो मैं मजाक कर रहा था। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तंग करना चाहता था। हकीकत तो यह है कि मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ ही अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारोगी? वो उसकी तरफ देखते हुए उम्मीद से बोला तो वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। मैं आपके साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगी। पहले तो वो उसे आंखें छोटी छोटी करके घूरता रहा और फिर मजे से कहने लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैसला तो मैंने ही करना है। वो उसके हाथों से निकलकर भागने ही लगी थी कि रमीज ने उसका बाजू पकड़कर उसे फिर से अपनी जानिब खींच लिया। अब मजीद दूर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। बाकी दुनिया को तो पहले ही पता चल गया है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माँ बाप का मामला है, तो बस कल जाकर तुम्हारा हाथ मांगता हूं और 1 हफ्ते के बाद तुम्हें ब्याह कर इज्जत के साथ अपने घर ले आऊंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी रानी बनना पसंद करोगी? उसकी बात सुनकर वो खुलकर मुस्कुरा दी और जोरों शोर से हाँ में सर हिला दिया। दरअसल रमीज की मां ने उसके बाप को धोखा दिया था, जिसकी वजह से उसका बाप गुस्से से घर से बाहर निकला था। उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका इंतकाल हो गया। दोबारा कभी भी उसने अपनी मां की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। उसके साथ ही उसका औरत जात से एतबार भी हट गया था। उसकी जिंदगी के 30 साल गुजर गए थे, मगर किसी को भी उसने अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया था। और जब उसने नैना को देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। उसको एक मौका देने का फैसला किया और उसका ये फैसला गलत साबित नहीं हुआ था। वो एक बहुत ही अच्छी बीवी साबित हुई थी। अल्लाह ताला ने 1 साल के बाद उन्हें एक प्यारे से बेटे से नवाजा।
जिससे उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई। नैना का भाई भी सेहत याब हो चुका था। पैसा मिलने के बाद उसके बाप ने एक कारोबार शुरू किया था और अब एक अच्छे पैमाने पर कारोबार चला रहा था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।